Good morning, my dear student. Today we are going to start our class 12 history, theme 13, chapter 13, Mahatma Gandhi and the nationalist movement, civil disobedience and beyond. My dear student, in this chapter we had discussed about Mr. Gandhi and their movement which was done by him. We also discussed that their political career in South Africa, how he became the popular in South Africa and then after India, how he became famous in India. These all points discussed by me in your class. I have already posted the various video on that. Today we will try to understand the Gandhian movement, when it was started, the circumstances of the India. My dear, I hope you have remembered that what I taught you. I discussed with you that when Gandhi reached India, their first speech in BHU, and what he given their speech in BHU. My dear, Mr. Gandhi clearly expressed himself that whenever we will not think about the poor people, the common people of India, we cannot started the mega movement against British imperial rule. The inauguration program of the BHU, there is no mean that type of statement, that type of speech. Everyone astonished, but Mr. Gandhi uses this occasion for their own expression of the nation. राष्ट्र के लिए अपने उद्बोधन के लिए उन्होंने इसको चुना. And he was little bit success also. My dear, in that place, Gandhiji clearly announced that कि आंदोलन वकीलों से नहीं चलेगा, आंदोलन कुछ इलिट क्लास के लोगों से नहीं चलेगा, आंदोलन कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों से नहीं चलेगा. आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने देश की गरीब जनता को साथ लाना पड़ेगा. गांधी जी स्पीच एट वाराणसी इन फरवरी 1916 was one of labeled merely statement of fact, namely that the Indian nationalism was elite phenomena, a creation of lawyers and doctors and landlords, but at another level, it was also the statement to intent. The first public announcement of Gandhiji own desire to make Indian nationalism more popularly representative of the Indian people as a whole. In the last month of the year, Gandhiji decided that we have to start a movement for our own people, peasants and workers. My dear, no need to explain about Champaran, Ahmedabad and Kheda movement. Champaran and Ahmedabad movement and Kheda movement, that was the movement which famous Mr. Gandhi on the India level. Everyone known that Gandhiji was a famous leader and he came and he started a movement for us. सभी लोग इस बात के प्रति सबके मन में ये भावना आ चुकी थी, ये गांधी आ चुके हैं, गांधी हमारे लिए युद्ध करेंगे, हम ब्रिटिशर्स से जल्दी ही फ्री होंगे. सबके मन में ये भावना आ चुकी थी. महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले अपने को पूरी तरीके से सिद्ध कर चुके थे. लेकिन आज हम उन परिस्थितियों को भी ध्यान देंगे जो गांधी के आने के पहले भारत में किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से वो मूवमेंट तेजी से फैला और गांधी कहाँ तक उसमें सफल हुए. अगर इन चीज़ों पे हम विस्तार से ध्यान दें तो सबसे पहले हमें देखना होगा थोड़ा और पहले जाके. जून 1914 प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया. इसमें एक और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान
और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, तो दूसरी ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की लड़ रहे थे। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में विश्व के औद्योगिक रूप में विकसित पूंजीवादी देशों के बीच विशिष्ट बाजारों तथा अपने कॉलोनीज स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू हो चुके थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, वी हैव ऑलरेडी रीड द क्लास 11th हिस्ट्री, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. Industrial revolution that was happened during 1850 and beyond. It was widely spread out of the continent of Europe, America also. The imperial power, the European power, Japan also, he want to establish their colony from the different continent. They also want to search the new market, especially if they capture the land. It is very easy to sell out their goods in the colonial market. और इसी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा 1914 में. I think you are all aware of that first world war because you have read in class 9th and 10th history. जून 1914 का समय जब विश्व युद्ध छिड़ा, पूरा विश्व दो ग्रुप में बंट गया. एक ऐसा ग्रुप जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी आया. ये एक ग्रुप वाले थे. दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप के लोग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की थे. ये इन सबका मेन एम था कि मार्केट पे कब्जा किया जाए, नई नई कॉलोनी बसाया जाए. जर्मनी और इटली जैसी शक्तियां विश्व प्लेटफॉर्म पे, विश्व रंगमंच पर देरी से आई थी, इसलिए वो उतने बाजार और उपनिवेश नहीं प्राप्त की थी जितने कि शुरू में आने वाले ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने हथिया लिए थे. इसलिए उन्होंने उपनिवेशों के पुनर्विभाजन की मांग की. इटली और जर्मनी ने कहा कि हमें एक बार फिर से जो कॉलोनियल एम्पायर है उसका एक बार फिर से डिवाइडेशन करना चाहिए. इसलिए उन्होंने इन उपनिवेशों के फिर एक बार बंटवारे की मांग की. वे पुनर्विभाजन कराने की शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार थे. फलस्वरूप संसार के हर प्रमुख देश ने अपने अपने उपनिवेशों और बाजारों को अपने अधिकार में बनाए रखने या नए उपनिवेशों और बाजारों को हथियाने के लिए संभावित युद्ध की तैयारी शुरू कर दी. 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों के दौरान संसार की बड़ी शक्तियों के बीच हथियारों की एक भयंकर होड़ शुरू हुई. इन देशों के जो रिपब्लिक थे, इन देशों के जो जनगण उपनिवेश के रूप में संघर्ष में भावनात्मक देश से आ गए. जो कॉलोनियल एम्पायर थी वो सभी इस विश्व युद्ध का हिस्सा बने, क्योंकि उनके शासकों ने कहा कि किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा, शक्ति और प्रसिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास कितने बड़े उपनिवेश हैं. उद्धत राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने इस प्रचार के मुख्य माध्यम के रूप में काम किया. अतः उदाहरण के लिए अंग्रेज इस बात पर गर्व का अनुभव करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता. दूसरी ओर जर्मनी ने धरती पर एक स्थान लेने के लिए हो हल्ला मचाया हुआ था कि हमें भी नए उपनिवेशों की स्थापना करनी है. अगर हम सुपर पावर हैं तो हमारे पास इतनी कम कॉलोनी क्यों है, और इसके लिए हम शक्ति का प्रयोग करने से भी नहीं झिझकेंगे. इस तरह अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा राजनीतिक और सैनिक तौर पर अलग थलग किए जाने के डर से हर देश ने दूसरे देश के साथ गठजोड़ करने की कोशिश की. जल्द ही विश्व की शक्तियां परस्पर विरोधी हो गई. ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भारत में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझ सकते हैं. मैं विश्व युद्ध की उन दशाओं का थोड़ा सा उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद ब्रिटेन ने भारत में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए. उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के पीछे का रीजन क्या था?
दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। और जब सारे देश गठजोड़ या शक्ति समूह में बट गई तो आखिरकार अगस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स तेजी से बदलने लगा। भारत में विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था। नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर आ गई थी। आरंभ में जून 1914 में जेल से रिहा किए गए लोकमान्य तिलक सहित भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया। ऐसा ब्रिटिश उद्देश्य के प्रति निष्ठा था, सहानुभूति की भावना के कारण था। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है, लिखा है। क्या लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में? जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, निष्ठा को जोरदार घोषणा के बावजूद, निष्ठा की जोरदार घोषणा के बावजूद अंग्रेजों के प्रति कोई खास सहानुभूति नहीं थी। जर्मन जीतों को सुनकर नरमपंथी और गरमपंथी समान रूप से खुश हुए। बेशक जर्मनी के लिए कोई प्रेम भावना नहीं थी, बल्कि उनके मन में अपने शासकों को धूल चाटते हुए देखने की इच्छा थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का उल्लेख अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है, जब वो लिखते हैं कि निष्ठा की जोरदार घोषणा के बावजूद अंग्रेजों के प्रति कोई खास सहानुभूति नहीं थी। जर्मन जीतों को सुनकर नरमपंथी और गरमपंथी दोनों खुश हो रहे थे। बेशक जर्मनी जीते या हारे, इससे कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी। भारतीय नेता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को हारते हुए देखना चाहते थे। राष्ट्रवादियों ने मुख्य रूप से इस गलत धारणा के कारण सक्रिय रूप से ब्रिटिश समर्थक रूप अपनाया कि कृतज्ञ ब्रिटेन भारत की निष्ठा का बदला एहसानमंदी से चुकाएगा और भारत को स्वराज्य के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता देगा। इस बात का पूरा एहसास नहीं था कि विभिन्न शक्तियां इसलिए लड़ रही हैं कि वे अपने तत्कालीन उपनिवेशों की रक्षा कर सकें। यहाँ पे भारतीय नेता कहीं न कहीं चूक गए। वो ये सोच रहे थे कि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो युद्ध की समाप्ति के बाद वे हमारे स्वराज्य के लिए काम करेंगे, हमें स्वतंत्र करने के बारे में विचार करेंगे, हमें कुछ सहूलियत देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल इन चीज़ों पे पढ़ेंगे। अब इसी दौरान भारत में एक आंदोलन चला जिसको बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में शुरू किया और एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक ने इसे अप्रैल में शुरू किया और एनी बेसेंट ने इसे सितंबर में शुरू किया। ये होम रूल लीग के नाम से जाना गया। होम रूल लीग एक ऑस्ट्रियाई शब्द है। होम रूल लीग क्या था? अब यहां देखिए, साथ ही अब अनेक भारतीय नेताओं ने साफ तौर पे देखा कि तब तक सरकार द्वारा कोई वास्तविक रियायतें देने की संभावना नहीं है जब तक इस पर जनता का दबाव नहीं बढ़ाया जाए। इसीलिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन जरूरी था। कुछ अन्य कारक भी राष्ट्रवादी आंदोलनों को इसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के साम्राज्यवादी शक्तियों में परस्पर संघर्ष हुए और उसने एशियाई जनगण की तुलना में पश्चिमी देशों की जातीय श्रेष्ठता के मिथक को खत्म कर दिया। इसके अलावा युद्ध के फलस्वरूप भारत में अधिक गरीब वर्गों की विपन्नता बढ़ गई। उनके लिए युद्ध का मतलब था करों का भारी बोझ तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की बेलगाम बढ़ती हुई कीमतें। वे किसी भी जुझारू विरोध में शामिल होने, जन आंदोलन में शामिल होने के लिए तत्पर थे, तैयार खड़े थे। फलस्वरूप युद्ध के वर्ष तीव्र राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन भी बढ़े। ये विश्व युद्ध का समय, ये प्रथम विश्व युद्ध का समय तीव्र राष्ट्रवादी आंदोलनों का दौर रहा भारत में। परंतु जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चलाया गया, जो नरमपंथी के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और गतिहीन राजनीतिक संगठन बन गया था और उसने जनता के बीच कोई सराहनीय राजनीतिक कार्य नहीं किया।
इसलिए 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरे का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने किया। दोनों होम रूल लीग ने युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वराज्य देने की मांग के पक्ष में सारे भारत में जोरदार प्रचार किया। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने यह लोकप्रिय नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोनों लोगों के तेजी से प्रगति की और स्वराज्य का नारा सारे भारत में गूंज उठा। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि स्वराज्य के लिए तिलक का होम रूल लीग बंबई को छोड़ के सारे देश में काफी लोकप्रिय था। तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का दायरा काफी बड़ा था और बेसेंट के होम रूल लीग का दायरा छोटे हिस्से पे सीमित था। इवन ये दायरा इतना बड़ा होने के बाद भी तिलक के होम रूल लीग में जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना सम्मिलित नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से सन्नद्ध थे, संबंधित थे। उन्होंने तिलक के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। युद्धकाल के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों का भी विकास हुआ। बंगाल और आतंकवादी दल सारे उत्तर भारत में फैल गए। अनेक भारतीयों ने अंग्रेजी राज का तख्ता पलटने के लिए हिंसात्मक विद्रोह की योजना बना ली। संयुक्त राज्य अमेरिका तक कनाडा में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों ने 1930 से गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी के अधिकांश सदस्य सिख किसान और सैनिक थे, मगर उनके नेता अधिकतर शिक्षित हिंदू या मुसलमान थे। मैक्सिको, जापान, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोचीन और पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में भी अंग्रेज विरोधी भारतीय पार्टी के रूप में सक्रिय सदस्य इकट्ठा करने लगे। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध करने की शपथ ली। 1914 में विश्व युद्ध के आरंभ होते ही गदर पार्टी, लाला हरदयाल जैसे नेताओं ने यह तय किया कि हथियार और आदमी भारत भेजे जाए, जिसे सैनिकों तथा स्थानीय क्रांतिकारियों को सहायता से विद्रोह शुरू किया जा सके। कई हजार लोग भारत आए। कई हजार लोग भारत वापस जाने के लिए आगे आए। इनके खर्च का पूरा जिम्मा गदर पार्टी के नेताओं ने अपने सर पे लिया। उनको भेजने के लिए लाखों डॉलर की रकम खर्च की गई। लोगों से चंदे की मांग की गई। अनेक लोगों ने अपने जीवन भर की बचत इस मूवमेंट को चलाने में अर्पित कर दी और अपने जमीन जायदाद बेचकर धन लगा दिया। गदर पार्टी वालों ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, सारे भारत में भारतीय सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। कई रेजिमेंटों ने विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया। अंततः 21 फरवरी 1915 को पंजाब में हथियारबंद बगावत कर दी गई। हथियारबंद सशस्त्र विद्रोह करने का एक दिन तय किया गया। दुर्भाग्यवश अधिकारियों को इन योजनाओं का पता चल गया। ब्रिटिश अफसर इस बारे में जान गए। विद्रोह के लिए तत्पर रेजिमेंटों को तुरंत ही डिप्लॉय कर दी गई, विघटित कर दिया गया। नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें या तो फांसी दे दी गई या लंबी कारावास का दंड देकर काला पानी भेज दिया गया। उदाहरण के लिए 23 रिसाले के 12 आदमियों को मौत की सजा दी गई। पंजाब की गदर पार्टी के नेताओं और सदस्यों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। उनमें से 42 को फांसी पर लटका दिया गया, 114 को आजन्म काले पानी तथा 93 को कैद की लंबी सजा दी गई। इनमें से अनेक ने रिहा होने के बाद पंजाब में कीर्ति और कम्युनिस्ट आंदोलनों की नींव रखी। गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भकना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मोहम्मद बरकतुल्लाह। गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर स्थित 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उन्हें एक कटु लड़ाई के बाद कुचल दिया गया। इनमें कई लोग मरे।
37 अन्य सैनिकों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया, जबकि 41 को आजन्म कारावास की सजा दी गई। अन्य क्रांतिकारी भारत तथा विदेशों में सक्रिय थे। एक असफल क्रांतिकारी प्रयास के दौरान 1950 में जतिन मुखर्जी ने, जो बाघा जतिन के नाम से लोकप्रिय थे, बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, लाला हरदयाल, अब्दुल रहमान, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, चंपक रमण पिल्लई, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा के नाम से कुछ भारतीयों में थे जिन्होंने भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाईं और प्रचार प्रसार किए। मैडम बीकाजी कामा का नाम लेना यहाँ इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने ही फहराया था। इसी बीच 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के 1960 के अधिवेशन में राष्ट्रवादियों ने देखा कि उनके बीच फूट के कारण उनके उद्देश्य को धक्का लग रहा है। उन्होंने सरकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करने चाहिए। देश की बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं तथा राष्ट्रीय एकता की ललक ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दो ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। प्रथम, कांग्रेस के दोनों पक्ष एक बार फिर एक हो गए। गर्म दल और नरम दल और वो पुराने विवाद उनके अर्थहीन हो गए और कांग्रेस की फूट ने किसी भी पक्ष को फायदा नहीं पहुंचाया था। ये बात दोनों ने जान ली, मगर सबसे अधिक इस फूट का फायदा अंग्रेजों को हुआ। राष्ट्रवाद के उठते हुए ज्वार ने कांग्रेस के पुराने नेताओं को, लोकप्रिय तिलक तथा अन्य लड़ाकू राष्ट्रवादियों को फिर से आदर सहित कांग्रेस में वापस लाने को मजबूर किया। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1907 के बाद पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ 1960 में। यहाँ पे मैं होम रूल लीग के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बाद एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। आयरलैंड में होम रूल लीग की तर्ज पर इसे भारत में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। आंदोलन के प्रारंभ होने में सहायक क्या क्या कारक थे, इन चीज़ों पर यदि आप बात करें तो आंदोलन के प्रारंभ में सहायक कारक राष्ट्रवादियों का एक वर्ग यह विश्वास करता था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। पार्लियामेंटो सुधार से लोगों का मोह भंग हो चुका था, जहां मुस्लिमों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई थी। युद्ध के उपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी भी आंदोलन का भाग लेने हेतु तत्पर थे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने तत्कालीन परिस्थितियों में योग्य नेतृत्व प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंशा का उजागर हुआ और इस प्रकार ये आंदोलन ये कारक थे। तिलक का होम रूल लीग, मैं बता दूं कि तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो 1916 सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई। शेष भारत में इसकी 200 शाखाएं खोली गई, लेकिन तिलक की लीग बेसेंट की लीग से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, ज़्यादा फेमस हुई। कालांतर में कई अन्य नेता होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए, जिसमें नरमपंथी कांग्रेसी भी थे। आंदोलन की विधियाँ क्या थी, आंदोलन के बारे में क्या था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा अगर आप किताबों को देखें तो समझ सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि तिलक की लीग में जो तिलक का लीग एक उग्रवादी धड़े से था, बेसेंट का लीग उदारवादी धड़े से था। गर्म दल तिलक, नरम दल बेसेंट, दोनों ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने भारतीयों को कुछ रिलैक्सेशन दी? क्या भारतीय नेताओं में जो पुराने राष्ट्रवादी थे, क्या उन्हें एक मंच पर लाया जा सका? क्या भारत के सारे पुराने राष्ट्रवादी नेता अब किसी नए लीडर का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार थे? इन सब चीजों पर यदि चर्चा करें तो आपको आगे की घटनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। इन पॉइंट्स को, इन प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन से, 1916 से और गांधी जी के भारत में आगमन के पश्चात उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों से, भारत में हो रही परिस्थितियों से, परिस्थितिजन्य घटनाओं से हम आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे। इसमें हमें
रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें खिलाफत मूवमेंट को देखना है, इसमें हमें जलियांवाला बाग मस्केर को देखना है, इसमें हमें ऐसी तमाम सारी घटनाएं छोटी बड़ी को देखना है, जिससे गांधी जी को एक अच्छा मौका मिला कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाएं। गांधी जी के खिलाफ उठे विरोध स्वर को किस तरह से गांधी जी ने शांत किया, इन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।